میں ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس میں لیول 1 کے اسٹوڈنٹ ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم جب بھی فیوچر لیڈر میں آتے ہیں تو نیو گیسٹ کے ساتھ آتے ہیں۔ تو آج کی میری گیسٹ ہے بیرا سعید فری لائنسنگ والی۔ تو آئیے جانتے ہیں ان کی کہانی انہیں کی زبانی۔ تو السلام علیکم بیرا، وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو بیرا سب سے پہلے آپ اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن کروا دیں، جو آڈینس آپ کو نہیں جانتی وہ آپ کو جان سکے۔ اوکے دیٹس گریٹ۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم، میرا نام ابیرا سعید فری لائنسنگ والی ہے اور میں ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس کی لیول 1 اسٹوڈنٹ ہوں اینڈ یہ ہے میرا شارٹ انٹروڈکشن، آئی ہوپ یو لائک اٹ۔ شکریہ بہت بہت۔ تو ابیرا سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریحان اسکول میں آپ کا تعلیمی سفر کب شروع ہوا اور کیسا رہا اور اب تک کیسا ہے؟ جی میم اپنا کوشچن رپیٹ کریں۔ میں نے آپ سے پوچھا ریحان اسکول میں آپ کا تعلیمی سفر کب شروع ہوا اور کیسا رہا ابھی تک آپ کا سفر؟ بہت اچھا ہوا اور میرا جو سفر شروع ہوا تھا وہ 15 فروری سے شروع ہوا تھا اور مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا اور ان کے بچے لیپ ٹاپ موبائل سے سیکھ رہے ہیں۔ جب میرا فرسٹ ڈے تھا ریحان اسکول میں تو اس ٹائم اتنے خاص بچے نہیں تھے، 10 یا 15 بچے تھے، تو بچے سیکھ رہے تھے اور نہ میں ان کو جانتی تھی نہ وہ مجھے جانتے تھے، تو میں سوچتی کہ یہ کیسے پڑھ رہے ہیں لیپ ٹاپ موبائل سے، کہ مجھے اس کے بارے میں اتنا پتا نہیں تھا، اتنا اب پتا چلا ہے۔ تو میں کہتی تھی کہ بابا کے مما کو کہتی پیرنٹس کو کہتی تھی کہ یہ کیسے اسکول میں ڈالا، عجیب اسکول ہے، جب میں ایڈمیشن لوں گی تو سارے میرے جو ریلیٹیوس ہیں تو وہ کہیں گے کہ بیرا کے اسکول میں گئی ہو، لیکن ابھی تک ہمارا بہت اچھا سفر ہے، بہت اچھا جا رہا ہے، بہت اچھا ایکسپیرینس ہے ریحان اسکول میں۔ اوکے، زبردست، بہت اچھے جواب دیا بیٹا آپ نے۔ تو بیرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ریحان اسکول کا کیسے پتہ چلا؟ اوکے، تو مجھے ریحان کے بارے میں فیس بک کے تھرو پتہ چلا۔ میرے بابا نے سر ریحان اللہ کی ویڈیو دیکھتے تھے، ہاں، تو پھر میرے بابا نے بولا کہ یہ بہت اچھا اسکول ہے تو چلو میں یہاں پہ ڈالتا ہوں۔ تو پہلے ہمیں پتہ چلا کہ اس کا سیری چوک میں نہیں پتہ چلا تھا کہ یہاں پہ ریحان اسکول ہے، ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ ریحان اسکول کراچی میں ہے، بٹ جب ہمیں پتہ چلا یہاں پہ ہمارے گھر کے نزدیک کھلا ہے تو میرے فادر نے بولا کہ میں آپ کا ایڈمیشن کراؤں گا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بہت زبردست، بہت اچھا جواب دیا بیرا آپ نے۔ تو بیرا آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو کون سا مضمون سب سے زیادہ پسند ہے اور کیوں پسند ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میں نے کہا بیرا آپ کو اس اسکول میں جیسے آپ فزیکلی کرتے ہیں ایکٹیویٹیز جیسا کہ پیسز بنانا، کینوس پوسٹ بنانا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند کون سا ہے؟ اوکے، بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمیں ایک تو ہماری پریکٹس بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں سیکھنے کو نیو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، نیو کریٹ کرنے کے لیے نیو چیز مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ اگر ٹریڈیشنل اسکول میں آپ نظر ڈالیں تو وہاں پہ آپ کو بار بار پریکٹس نہیں کرائی جاتی۔ لائک آپ کو میتھ کا کوئی کام دیں گے تو وہ آپ کو اس کا ون ٹائم اس کا ٹیسٹ لیں گے، اس کی جیسے ہاتھ کو بار بار پریکٹس کرائی جا رہی ہے، اس کا بار بار پریکٹس نہیں کرائیں گے کیونکہ وہ یہ پریکٹس نہیں کراتے، وہ کہتے ہیں ایک چیز ہو گئی تو ہو گئی، وہ آگے چلتے ہیں، وہ پیچھے نہیں دیکھتے کہ بچے کو وہ بھول گیا ہے، وہ یاد ہے نہیں یاد، لیکن ہارس کو میں یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو کیا یاد ہے اور کیا یاد نہیں ہے، اور ہارس کو کی خوبی یہی ہے کہ یہاں پہ پریکٹس کرائی جاتی ہے، یہاں پہ چیزوں کو بار بار کرایا جاتا ہے۔ اوکے، ویری نائس آنسر۔ تو بیرا آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو ٹریڈیشنل اسکول اور ڈیجیٹل اسکول میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ بہت آسمان زمین کا بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ جو ٹریڈیشنل اسکول ہے وہاں پہ آپ کو پین اور کتابوں کے تھرو پتہ چلے گا، لیکن جب آپ وہ بھی تعلیم بہت ضروری ہے اور ریحان کی بھی تعلیم بہت ضروری ہے، کیونکہ اس تعلیم سے آپ کو بڑوں کا ادب کرنا سکھایا جاتا ہے، کسی سے پیار سے بات کرنے کو سکھایا جاتا ہے، تمیز سکھائی جاتی ہے اسکولوں کی پڑھائی، اور جو یہ والی پڑھائی ہے یہ آپ کو آگے فیوچر میں کام آئے گی، لیکن میری نظر میں دونوں پڑھائی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اوکے، ویری نائس، بہت اچھا جواب دیا بیرا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا سب سے بڑا خواب کیا ہے اور آپ اپنی زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ اوکے دیٹس گریٹ۔ تو سب سے پہلے میرا خواب یہ ہے کہ میں آگے کچھ بڑا کرنا چاہوں، تو کیونکہ
मेरा बाबा को कहते हैं कि मेरा बेटा है, मुझे बेटे की तरह समझते हैं कि मेरा बेटा नहीं है, तो मेरी मुझे मेरा बेटा बन के दिखाएगी और इंशाल्लाह मैं अपने माँ बाप को ख्वाब पूरा करूंगी और मैं कुछ बड़ा फ्यूचर में करना चाहती हूँ। ओके, ज़बरदस्त, वेरी नाइस आंसर। तो अबीरा, आप मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपको आखिरत में बताऊं तो आखिरत में हमें अल्लाह नमाज़ें पढ़नी होंगी, अल्लाह ताला का मतलब कुरान पढ़ना चाहिए। आखिरत में जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उन पर अमल करना चाहिए, तो हम आखिरत में फिर जाकर कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप दुनिया की बात करें तो दुनिया में आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे होंगे, मशक्कत कर रहे होंगे, तो आप उस चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अबीरा, आपसे मेरा अगला सवाल ये है बेटा, आप मुझे ये बताएं कि आपको अगर हर स्कूल में एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप उस स्कूल में क्या चेंजिंग लाना चाहेंगे? मेरे ख्याल से चेंजेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे इतना शौक नहीं है प्रिंसिपल बनने का, क्योंकि हमारे स्कूल में जो मैम अस्मा शहीन है प्रिंसिपल है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से स्कूल चला रही हैं और मुझे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा स्कूल है वैसा बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। ओके, ज़बरदस्त। तो अबीरा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, आपके ख्याल में एक अच्छा लीडर में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा मैम आपने सवाल पूछा, एक लीडर में एक उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए और वो मतलब उसके अंदर वो नहीं होना चाहिए लाइक जैसे लोग कहते हैं ना कि आपको कोई चीज़ मिल जाए तो आपको दिल आ जाता है कि हम ये रखें, और उस लीडर में वो नहीं होनी चाहिए, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, ताकि तब वो एक अच्छा लीडर कहलाएगा। ओके, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है, क्या आप कभी क्लास में या किसी ग्रुप में लीडर रही हैं? इस तजुर्बे से क्या सीखा आपने? ओके, तो बहुत अच्छा मैंने ये सीखा है कि हम बच्चे ने लाइक मैंने बहुत कुछ सीखा, लाइक रेहान को मैंने आफ्टर लाइक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा सीखा है। पहली बात कॉन्फिडेंस बहुत सीखा, क्योंकि जो मेरा प्रीवियस स्कूल था वहाँ पे मुझे बोलने की सलाहियत नहीं आती थी, मैं इतना बोलती नहीं थी, और रेहान स्कूल में आके मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा। सबसे पहले मैंने कॉन्फिडेंस सीखा यहाँ पे। ओके, ज़बरदस्त। तो वीरा, आपसे मेरा अगला सवाल ये है, अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान या दुनिया में, क्या मतलब तब्दीली लाना चाहेंगे? अभी तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन मुझे कोई तब्दीली नहीं लानी, अगर मौका मिला तो फिर मैं सोचूंगी। ओके, ज़बरदस्त। तो वीरा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, आपको अपने बारे में सबसे खास बात क्या लगती है? ओके, सबसे पहले जब अपने फ्यूचर आगे आने वाला दौर बहुत मुश्किल है, तो मैं फिर परेशान हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे अपना फ्यूचर सही करना चाहिए, ताकि आने वाले दौर में मुझे किसी की मतलब मुहताजी ना हो, किसी के मैं ये ना कर सकूँ कि ओह शिट मैंने बचपन में ये नहीं सीखा, तो मैं आगे। ओके, ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो वीरा, आपसे मेरा अगला सवाल ये है, अगर आपके दोस्त किसी मुश्किल वक्त में हो तो आप उनकी कैसे मदद करती हैं? मैम आप थोड़ा सा लाउड बोलें। मैंने कहा, अगर आपके दोस्त के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए तो आप मुझे बताएं, आप उनकी मदद कैसे करती हैं? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। अगर दोस्त के काम ना आए तो वो फिर दोस्त नहीं कहलाता, क्योंकि हमें हर एक किसी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मदद से ये होगा कि हम मदद करेंगे तो हमारी जो नेकी है वो बढ़ेगी, और जो मदद करेंगे हम, तो वो इंसान भी खुश होगा कि हाँ ये फलां बंदे ने मेरी मदद की है। तो अगर मैं दोस्त की कोई मदद करनी पड़े, लाइक उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर इन्हांस को क्या बात करेंगे, लाइक कोई किसी बच्चे को आपको पता है टास्क समझ नहीं आते, तो मुझे मेरा यही होता है कि मुझे उसको सिखाना चाहिए, ताकि वो सीख भी सके और मैं उसके काम भी आ सकूँ, मेरी नेकी भी हो जाएगी और उसको समझ भी आ जाएगी। ओके वीरा, तो आपसे मेरा अगला सवाल ये है, आपका पैगाम उन बच्चों के लिए जो घबराते हैं तो वो क्या करें? वो ख्वाब देखने की जो है घबराहट को, इस हिचकिचाहट को, हेजिटेशन को किस तरह खत्म करें? ओके, सबसे पहले वो बोले, वो अपने उनकी जो हिचकिचाहट है, वो जो डरते हैं, वो उनको बोलना बोलना हो, वो कह
बुरा करते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है, वो ऐसे करते हैं। लाइक मैंने जब रिहान्स को ज्वाइन किया, मुझे बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स ने कहा कि वीरा आपने ये नहीं किया, बहुत गलत काम किया, लेकिन मैं उनकी बातों को मैंने इग्नोर की, क्योंकि मेरा जो एम है मैं उसको आगे मैं पूरा करना चाहती हूँ। और मैंने अगर मैं लोगों के कहने पे चली तो फिर मेरा एम और मेरा जो लाइफ गोल है वो उधर का उधर ही रह जाएगा। तो फिर मैंने उनको इग्नोर किया, मैंने आगे आगे अगला सफर शुरू कर दिया। तो मेरा यही मैसेज है कि आप लोगों की बातों को छोड़ें, क्योंकि अपने जो अंदर की अपना जो एम है वो उसको पूरा करें, ताकि आपका लाइफ गोल पूरा हो जाए। वो वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया हमारी ऑडियंस को। तो अबीरा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, आपके ख्याल में ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ क्या है? मैम आप प्लीज दोबारा रिपीट करें। मैंने कहा, आपकी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ क्या है? ओके, कीमती चीज तो मेरी जिंदगी में सबसे पहले मेरी कीमती चीज माँ बाप है, क्योंकि अल्लाह की ये रहमत है कि जिनके आप माँ बाप जिनको मिले हैं। कोई अक्सर ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे जिनकी माँ है बाप नहीं है, और जिनके बाप है जिनकी माँ नहीं है। ये तो वो भी तो एक बच्चे हैं कि लाइक उनको महसूस होती है, अगर उनका बाबा अबू है तो उनको अपनी अम्मी की कमी महसूस होती है, क्योंकि आप होता है जो बेटियां होती हैं उनकी अम्मी के साथ बहुत अटैचमेंट होती है, वो बातें अम्मी के साथ शेयर कर सकती हैं जो अब्बू के साथ नहीं कर सकती। तो ये बहुत बड़ी रहमत है कि जिनके पास दोनों हैं, अम्मी भी हैं और अब्बू भी हैं, वो किस्मत बच्चे होते हैं कि जिनके पास दोनों अल्लाह की रहमत होती है। तो आप वो भी देखिए जिनके पास बाप है माँ नहीं है, माँ है बाप नहीं है। तो मैं कहूँगी कि आप अपने वालिदैन की कदर करें और उनकी हर बात सुने और उनकी ओके, अताअत और पैरवी करें। वेरी गुड, बहुत बहुत वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो आपसे मेरा अगला सवाल ये है, जब लोग आप पर यकीन रखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लाइक अच्छा काम किया हो, आपने अपना लोग कि हाँ मैंने ये काम किया, तो लोग कहते हैं माशाल्लाह, तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ इसलिए बंदे ने मुझे अप्रिशिएट किया, इसने अप्रिशिएट किया। तो मैं यही चाहूँगी कि आप जो बच्चा काम कर हम उसका अप्रिशिएट करते जाए, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता जाए। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने बेटा। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है, अगर आप किसी की ज़िंदगी में बदल सकती हो तो वो कौन होगा और क्यों, किस वजह से बदलेंगे? लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई काम नहीं है, अभी मैं अपने लाइफ गोल पे ही चल रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा इससे नहीं है कि मैं किसी की जिंदगी बदल सकूँ, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह हमारे जो गॉड है अल्लाह ताला के हाथ में है कि वो हर काम उनके हाथ में है, वो बदल भी सकते हैं, वो उनकी मौत हर काम उनके हाथ में है। तो ये मेरा काम में नहीं है, क्योंकि ये हमारे अल्लाह ताला बदल सकते हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ओह वेरी गुड। तो वीरा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, जब लोग आप पर यकीन करते हैं तो आपको उस वक्त कैसे महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, वो लोग मुझे यकीन कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपका ना माँ बाप पे आप बच्चों पे यकीन होना चाहिए। जब आप कोई काम करते हैं ना, तो आपके माँ बाप की इज्जत पैदा होती है कि हाँ फलां की बेटी ने ये काम किया है और फलां की बेटी ने ये काम किया, इससे आपकी जो माँ बाप की जो रिस्पेक्ट है वो ज्यादा हो जाती है, और इससे माँ बाप भी खुश होते हैं कि मेरी बेटी बच्चों ने ये काम किया है। ओह दैट्स ग्रेट, वेरी गुड आंसर। तो वीरा, मेरा आपसे अपना अगला सवाल ये है, आपने अब तक अपनी ज़िंदगी में सबसे अहम सबक क्या सीखा? कि मैंने बहुत सबक सीखा। मैंने ये सीखा है कि लाइक मैंने बड़ों की बात मैंने ये, और हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ऐसे मैं अक्सर मैंने ये लोग देखे हैं जो गरीब को ना, जो बहुत अमीर होते हैं ना, तो वो ना गरीब को मतलब देते हैं, वो कहते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने बोला है कि हमें बराबर काम करना चाहिए, हमें जिस तरह गरीब से सलूक करना चाहिए उसी से अमीर से सलूक करना चाहिए। अक्सर लोग होते हैं कि अमीर को ज्यादा इज्जत देते हैं और गरीब को बहुत कम देते हैं। तो अल्लाह ताला ने बोला है कि हमें बराबर काम करना चाहिए। तो मेरा यही एडवाइस है कि आपको हर जो कार्य से आप बराबर सलूक करें, छोटों के साथ प्यार से बोलें, बड़ों का कहना माने। ओके, ज़बरदस्त, वेरी गुड आंसर। तो वीरा, आपसे मेरा अगला सवाल ये है, आप कैसे सीखते हैं, किताबों से, तजुर्बात से या दूसरों से बात करते हैं? सबसे पहले अगर हाथ के टास्क की बात की जाए तो हम तो लाइक तो डिफरेंट टास्क हैं, हम तो सबसे पहले फैसिलिटेटर से सीखते हैं। हमारे स्कूल में टीचर्स जो होते हैं, हमारे स्कूल फैसिलिटेटर्स होते हैं जो हमें ट्रेन करते हैं। तो उनका जो वो जो फैसिलिटेटर्स हमने सीखा और उन्होंने हमें सिखाया, और आगे से हमने
स्टूडेंट आते हैं हम उनको सिखाते हैं। तो ये चीज़ बहुत बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ सीखने को मिलती हैं, न्यू AI टेक्नोलॉजी को लर्न करने को मिलती हैं। और मैंने यहाँ पे बहुत चीज़ें आपके हाथ को में आए, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत चीज़ें आपको लर्न करने को मिलेंगी। ओके, वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो मेरा मेरा आपसे अगला सवाल ये है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको कब और कैसे एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करने में खुशी होती है? ओके, एहसास ऐसा हुआ कि एक हम लोग कहीं जा रहे थे सफर पे जा रहे थे, तो एक गरीब था ना, तो हम ना वहाँ पे चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह बैठे, तो मैंने उसको बहुत नोटिस किया ना। हम मेरे पेरेंट्स वो चाय वगैरह पी रहे थे, मेरी बहन उधर के झूले भी थे उधर गए हुए थे, तो मैं उधर बैठी उस गरीब को नोटिस किए जा रही थी। एक बहुत बड़ी गाड़ी है, बस पर्सनालिटी आई, बहुत पता नहीं, मुझे इतना भी याद नहीं है, लेकिन वो पर्सनालिटी आई और तो उसने ना उसको इग्नोर कर दिया। तो मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा होता है खुद है आपको, लाइक अब किसी को दुख होता है, लाइक आपके किसी छोटे बच्चे को कोई चोट लग जाए तो पेरेंट्स को दुख होता है हमारे बच्चों को क्या हुआ। इससे मुझे बहुत दुख लगा कि इस गरीब के साथ इसने ऐसा क्यों सलूक किया। लेकिन फिर वो रोया, परेशान हो गया, तो मैं उसके पास गई, तो मैंने बोला कि अंकल आपको क्या हुआ, तो कहते हैं मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। तो फिर जब मैंने उसको 100 रुपया दिया तो वो बहुत खुश हुआ, और मुझे भी खुशी महसूस है कि मैंने किसी की मदद की है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो अभी ना आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि जब आप उदास होती हैं तो आपको कैसे दूसरों को शो आउट करती हैं कि मैं उदास नहीं हूँ, मैं खुश हूँ? मैम आप अपना प्लीज क्वेश्चन रिपीट करें। मैंने कहा जब आप उदास होती हैं तो आप खुद को कैसे खुश रखती हैं? जब उदास होती हूँ तो सबसे पहले मैं एक कमरे में रोती हूँ, क्योंकि जब तक मैं रोऊँ ना मुझे सुकून नहीं होता, क्योंकि मेरे फिर वो ना परेशान हो जाती हूँ, और मेरे पेरेंट्स को मुझे चल जाता है कि अबीरा को क्या परेशानी है, और फिर ना मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरी लाइक मैंने रिहान सुबह कोई टास्क नहीं किया, तो जब तक मैं वो टास्क नहीं करती हूँ वो मेरे जहन माइंड में रहता है, हाँ मैंने जब तक मैं ये टास्क करूँगी तब मेरे माइंड से वो उतरेगा। तो मेरे फिर चलता रहता है, हाँ अभी तक मैंने ये टास्क नहीं किया, जब तक वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ तो फिर मैं रिलैक्स रहती हूँ, फिर मैं ठीक होती हूँ, हाँ मैंने आज का टास्क कर लिया, मुझे कुछ कोई कहेगा नहीं, क्योंकि आप जब कोई काम कर लेते हो ना तो आप रिलैक्स रहते हो। हाँ मैं आप इतना वो कोई सवार नहीं रहता है कि अक्सर बच्चे अपने ऊपर कोई काम को सवार करके रख सकते हैं, हाँ हमने ये किया, आप अगर कोई काम को सवार ना किया करो, आप उस काम को किया करो ताकि आप लोग रिलैक्स रह सकें। ज़बरदस्त। तो अबीरा, आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में अम्मी अब्बू से सबसे ज़्यादा दोस्ती किससे है? आपके वालिद से आपकी दोस्ती ज़्यादा है या आपकी वालदा से? ये मेरी वालदा से ज़्यादा तो दोस्ती है, कि हर बात होती है मैं उनसे शेयर करती हूँ। अगर कोई काम गलत हो जाता है तो मैं क्योंकि मेरे वालिद से बहुत सख्त है गुस्से के, तो मैं उनसे शेयर करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा डांट देते हैं। तो मेरी मम्मा बहुत लाडली है, मुझे प्यार से समझाती हैं, तो मैं हर बात मम्मा से शेयर करती हूँ। और तो इसलिए वो मेरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं उनसे हर बात, परेशानी हो दुख हो जो मर्जी हो, उनसे शेयर करती हूँ कि मम्मा ये मसला हो गया, तो वो मेरा इशू रिजॉल्व कर देती है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मीरा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, आपके ख्याल में एक लीडर और आम इंसान में क्या फ़र्क होता है? ओके दैट्स ग्रेट। तो एक लीडर में, अगर वैसे मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो एक आम इंसान में, लाइक उसके पास ज़्यादातर जो लोग समझते हैं उसके पास, जब वो गरीब होता है वो कहता है हाँ ये आम इंसान है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते जितने वो लीडर या बहुत सी बिग पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट देते हैं। वो जो बिग पर्सनैलिटी होती है उसको रिस्पेक्ट देते हैं, मेरे ख्याल में आम इंसान ही ठीक है, क्योंकि उसके पास वो, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि जो लाइक, हाँ जिनके पास बड़े पैसे होते हैं उनको लोग आजकल के ज़माने में उनको रिस्पेक्ट दिए जा रहे हैं, जो आम इंसान को कोई इज्जत कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती। ये ज़बरदस्त, वेरी नाइस। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कैसा रोल मॉडल बनना चाहती हैं? जी मैं अपने एक के जब लोगों देखती हूँ अच्छा बिहेवियर करती हूँ, मेरा यही गोल है, एम होता है कि मैं उनसे प्यार से पेश आऊँ, अच्छे से ख्याल से बात करूँ ताकि उस अगले को दुख ना हो, और मेरा यही है।
ओके, तो आप मुझे ये बताएँ अबीरा, आपको रेहान स्कूल जॉइन किए हुए कितना टाइम हो गया है और रेहान स्कूल में आपको सबसे ज़्यादा कितना फेस हो रहा है? ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझे। रेहान को मैं 3 मंथ हो चुके हैं रेहान को ज्वाइन करते हुए। ओके, तो आपने इस 3 मंथ में इस स्कूल से क्या-क्या सीख लिया? आपके अंदर जो आप बताइए। ओके, ओके, तो मैंने जितने मेरे हार्मफुल टास्क है लाइक वो सारे मैंने सीख लिए। और मुझे लाइक जैसे कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, सेल्स लैब, इंटरव्यू, कॉल एनी में होती है बहुत माया, कोपायलट, सीसैम, जितने भी एआई टूल्स हैं उन मुझे सब आगे लाइक जितने मेरे हार्मफुल टास्क है मुझे सब आते हैं। ओके, ज़बरदस्त। तो आपको सबसे ज़्यादा कॉल एंडी, माया, फेसबुक वगैरह में सबसे ज़्यादा अच्छा टास्क कौन-सा पसंद है? जो आप खुशी से करती हैं कि मैं ये टास्क करूँगी, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। सबसे जो मुझे फेसलेस अच्छी लगती है क्योंकि उसमें बहुत अच्छा मुझे बनाने में बहुत शौक होता है। मैं कहता ज़्यादातर मैं फेसलेस बनाती हूँ और मुझे फेसलेस में बनाने में बहुत मज़ा आता है। फेसलेस में कैनवा ओके, पोस्ट और स्टोरी पोस्ट करने में। अबीरा। ओके, आई थिंक सिग्नल इशू की वजह से मुझे आपसे क्या लास्ट में आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक़्त हमें दिया। तो लास्ट में आपके ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहें तो? ओके, मैं यही कहूँगी कि अपना वक्त ज़ाया ना करें क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। क्योंकि आपको गया हुआ वक्त दोबारा नहीं मिल सकता। आप इसमें अपना लाइफ गोल, अपना जो एम है वो यहाँ पे रेहान स्कूल में आए और उस एम पे काम करना शुरू करें ताकि आगे आपका एम जो गोल है वो पूरा हो जाए। ओके, ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स ये थी हमारी, ये उम्मीद करती हूँ आपको देखिए तो खुशी होगी। मिलते हैं न्यू गेस्ट के साथ। तो मिलते हैं न्यू फ्यूचर लीडर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।